So, good evening, everyone, and welcome to another gift facilitation call based on some topics on consciousness again. And today we are going to talk about conscious manifestation. So, before we start the call, I would like to hear from you, what does manifestation mean to you? What do you understand by manifesting? And how do you manifest? Or are you able to manifest or not able to manifest? What are your thoughts about manifestation? हेलो मैडम। ओके जी, हाँ। यस दीपक हम जी। हम हम जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो, हम्म। तो वो हमारे जीवन में हो जाए, उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। जी जी। हम्म। तो जैसा हो, मतलब जो म- जैसे कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं पास हो जाऊं, इसको आप हाँ, मैनिफेस्टेशन समझते हैं कि नहीं है? वो भी एक तरह से मैनिफेस्टेशन। मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो अच्छे अंकों से पास हो जाऊं, तो वो भी मैनिफेस्टेशन हुआ। ओके। तो तो does anyone have any other points of views about what we say? So there is something like a goals, achieving your goals, and manifestation. There is a distinction between the two. I So have I'm written that. yes, yes, Hema. In chat, I have written. Yeah, what we demand, we receive. Okay, so again, and whatever we are asking for, when you say that, when you are demanding or when you are requesting, भगवान से किससे रिक्वेस्ट करते हैं आप? भगवान से करते हैं, किससे करते हैं? हेमा जी, Mind of क्वेश्चन universe, टू। ओके, universe. यूनिवर्स से या भगवान, कॉन्शियसनेस, हम जो भी बोले, when you demand something from the universe and you receive it, and then that is what you call manifestation. So uh, both the cases, Deepak ji said that even when you are working towards something and you achieve the results that you had envisaged, आपने सोचा था कि इसका ये मैं पास हो जाऊंगा एग्जाम में, या मैं बिजनेस में मैंने मेहनत करी है और मेरे को इतनी प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी, वो भी सब मैनिफेस्टेशन में आपने रखा है। तो वील मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन goals and manifestation. There is a slight difference between the two. But then in both the cases, does anyone else have to have add anything to what we just talked about? What so Pankaj sir, मैंने पूछा था question, what does manifestation mean to everyone? मैनिफेस्टेशंस का हमारा क्या सोचना है कि क्या होता है मैनिफेस्टेशन? साल, सीमा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? व्हाट डज Yeah, मैनिफेस्टेशन so मीन टू यू? everything that everyone has in life is a manifestation. So everything is a manifestation. Without a thought, nothing could happen. So when thoughts become things, that's when we experience manifestation is what I feel. So what manifests is only the dominant thinking, not the struggle. I mean, not the non-dominant thinking. So what I'm thinking about most of the time is what I would get in life. So if Okay. I'm looking at manifestation from that point of view. Okay, so let me just repeat what Sal wanted to add, that if जो भी लाइफ में अभी हो रहा है, हमको जो भी दिख रहा है हमारी लाइफ में, वो हमारा ही मैनिफेस्टेशन है, हमारा ही क्रिएशन है। सो वी क्रिएट आवर रियलिटी। जो भी है, तो हमने जो भी पहले और जो भी हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। थॉट्स बिकम्स थिंग्स आर द वर्ड्स दैट यू यूज्ड। तो जो भी हमने पहले सोचा था या किया था, वो आज हमको दिख रहा है, and then we have the power to change our future by changing our thoughts. Do I have the liberty to add that, Sal, to what you were trying to say? Sorry. Can I add
do I have that liberty to add to what you said, that if we have created, we have manifested our present life through our thoughts, then if we change our thoughts, we have the power to create a different future, Correct. right? Okay. Correct. But then, yeah, so that is what she thinks. Now, another question that pops up, that how much are we able to govern what is showing up in our life through our thoughts? क्या आप किस हद तक आप जो सोचते हैं वो शो अप हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है? मतलब थियोरिटिकली हम सब जानते हैं, हमने कहीं पढ़ा है या हमने माना है, हमको ये कंसेप्ट पता है कि जो भी हम सोचते हैं वो क्रिएट होता है लाइफ में, पर कितना हम कॉन्शियसली उसको गवर्न कर पा रहे हैं कि जो हम सोचते हैं वही हो, कि बाय डिफॉल्ट कुछ लाइफ चल रही है। पंकज सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Okay, so I will mute everyone. And if you have something to, if you want to talk about something, you can please unmute yourself and say something. Okay, so first thing, let's make a distinction between setting goals or achieving our goals, setting our goals and achieving goals, and manifestation. So many of us, like, we have believed that anything that we achieve is a manifestation. But then for the purpose of this call and for our understanding, let's make a distinction. We work towards certain things in our life. हम कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, और जब वो चीज, वो रिजल्ट हमको मिल जाता है, वो अचीव हो जाता है, उसको गोल्स की प्राप्ति होना बोलते हैं. दैट इज गोल्स, दैट इज नॉट मैनिफेस्टेशन. Okay, so manifestation is more like, I'm studying for an exam, I appear for the exam and I could get good or whatever results that I'm asking for, or whatever I wrote and I achieved, that is achieving my goals, working towards my goal and achieving whatever I could out of those goals. Manifestation is more of when you are asking for things for which there was more or less no effort, or it is like something you are asking as if you are asking for new opportunities in your business, and someone walks in who comes and like they appear to be like good clients, or the exact collaboration that you are looking for which you have not made any conscious deliberate actions, and still it is showing up in your life. So that is what is the true essence of manifestation. Okay, so I'm looking for a life partner. I go to a party and there I meet a man who is who is like more or less the person that I'm looking for. That would be a manifestation, because I didn't go to that party with the agenda that I'm looking for a prospective partner over there. Am I clear? Yeah. So manifestation, when we use the term manifestation, it is it is finding things appearing out of nowhere. They feel as if we had asked, as if our prayers are just being answered in places where we had least expected them to, at the time when we had we had not gone there with that agenda, with that intention, and it is just showing up. So that is what we actually are talking about, manifestation. Now, another question that I have for you is, that is totally correct from a metaphysical point of view. We all know that thoughts become things. Everything is created twice in the universe. First in our thoughts, and then it occurs in the physical reality. Now,
how much mastery do we have in those thoughts becoming things, and is there a way to have a confirmed mastery that every time I think it would come into existence? Does anyone, what thoughts do you have? Anything that, what is your perspective on that? Would like to hear from all of you. Let's make it a discussion so that we all gain from it. Yeah. So welcome Suraj, Jaya, Sushma, Brenda, Kalpana. Thank you for joining in on this call, and please share your views. हेलो तस्नीम जी, हम लोग का हाय मतलब मेरा सुषमा, हाँ पर्सनली जी। इंग्लिश इतना आप हिंदी अच्छा में नहीं बोले, है। वो हिंदी में नहीं बोलिए ना नहीं, मैं बिल्कुल। हिंदी में तो बोल रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेन चीजें यदि आप हिंदी में भी बोल पाए, मेन पॉइंट्स, तो हमें अच्छा रहेगा, यदि आप बिल्कुल पॉसिबल श्योर। हो तो। जी जी। तो सुषमा जी, मैंने बोला कि एक हमारा गोल्स अचीव करते हैं जिसके के लिए हम काम कर रहे हैं उसका, और वो हम फिर जैसे कि हम कोई एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और फिर हमको रिजल्ट आया, या हमने बिजनेस में हमने कुछ मेहनत करी और उसके बाद में हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए, उसको गोल्स सेट करना और उसके लिए काम करके गोल्स को अचीव करना बोलते हैं। और जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब हमने जहाँ पे कि जिस तरह से कि मेरी एक इच्छा है कि मुझे एक कंपैटिबल लाइफ पार्टनर मिले। मैं एक पार्टी में जाती हूँ और वहां पे मुझे मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो कि एग्जैक्टली या बहुत कुछ वैसा है जैसा कि मैं अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रही हूँ। तो वहां पे मैं वो पार्टी में इस वजह से नहीं गई थी कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन मैंने यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, और वो किसी जगह पे कहीं पे आ गया। वैसे ही मैं कोई बिजनेस क्लाइंट या डील या कोलैबोरेशन देख रही हूँ और कहीं पे अचानक ही वहां से वो कोई एक पर्सन आता है जो कि मुझे कांटेक्ट करता है। मैं चेज नहीं कर रही हूँ, गोल्स को मैं चेज करती हूँ। मैनिफेस्टेशन वो होता है जहां चीजें खुद चल के मेरे पास आती हैं। एम आई क्लियर सुषमा जी? यस, थैंक यू सो मच। जी। फिर इसमें कुछ इन्होंने सलोनी ने ऐड किया था कि हम लोग जो भी हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। तो हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, 2 बार सृजन होता है। पहली पहली बार हमारे विचारों में, हमारी सोच में, और नेक्स्ट टाइम दूसरी बार वो हमारे जो वास्तविकता में वो आता है ना। तो जो भी हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में आ जाता है, मैनिफेस्ट होता है, क्रिएट होता है। फिर मेरा ये सवाल है कि क्या हमारी इस चीज पे मास्टरी है क्या, या वैसा संभव भी है क्या कि हमेशा जो हम सोचें वो हो ही हमारी लाइफ में, वो वास्तविकता में तब्दील हो ही? ये क्या, इसमें आपका क्या विचार है कि क्या ये हमेशा संभव है? और अगर संभव है तो क्या वो कैसे संभव है, और क्या हम उसमें अपने आप को, हमको महारत हासिल है क्या? मेरा क्वेश्चन क्लियर है आपको सुषमा जी? हाँ, क्लियर है। मेरा सोचना जी ये है कि हम जो भी चीज सोचते हैं, जी। मैनिफेस्ट करते हैं, पर उस पे हम्म हमें ना खुद ही डाउटफुल हो जाते हैं बहुत बार कि यार इतना हो पाएगा कि नहीं मेरे से, मैं यहाँ पहुंच पाऊंगी कि नहीं, मैंने कुछ हम्म ज्यादा तो नहीं सोच लिया है, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पर क्या ये हम्म। पॉसिबल होगा कि नहीं। तो शायद वो हमारा विचारों का डाइवर्जन जो होता है वो हमको मैनिफेस्ट करने से रोक देता है, ऐसा मुझे मेरे लिए लगता है। जी। तो पर आपकी लाइफ में इतने सफिशिएंट एग्जाम्पल्स हैं जहां पे कि आप बोल सकते हैं कि आपको डाउट्स नहीं आए, आपका आपका बिलीफ स्ट्रांग रहा और फिर वो मैनिफेस्ट हो ही गया? हाँ, मेरे को 2-3 है एग्जाम्पल, अभी शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, पर है मेरी लाइफ नहीं में कोई कि बात नहीं, हाँ। जो हम कि लोग जब की मुझे, सबकी लाइफ में है कुछ ऐसी चीजें, हाँ, कुछ पर ऐसी फिर भी चीजें हम हैं। बोल सकते हैं और फिर हम उसमें वहां पे इस चीज को हम हम इस ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि शायद मेरे ही सोच में कहीं पे डाउट्स होगा, कहीं बिलीफ मेरा इतना स्ट्रांग नहीं होगा, इससे जो चीज नहीं मैनिफेस्ट हुई उसके लिए हम खुद को ही कहीं पे दोषी भी ठहरा देते हैं।
यस, ऐसा हमेशा ही ऐसा मेरे साथ ऐसे होता है कि मुझे लगता है कि मैं इतनी स्ट्रांगली उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाई। हाँ, जी जितना सोचना चाहिए उस हिसाब से। yeah uh, uh, yes Sal, you have raised your hands. Oh yeah, sorry, 1 second. Let me just correct that first. So, you asked the question, but I kind of forgot the question, which is why I raised my hand. Okay, so the question I asked was that do we have a mastery that whatever we think does get manifested? Do we have a mastery in that? And even if we don't have a mastery, do we know the right process to be done so that, and is it, do we truly like, are we that, do we have that conviction that this is the law? That every time I think something, it will get manifested. It is by rule that it will get manifested. It's as if it is a universal law. Well, yes or no. If I can answer, yes and no. We don't have that kind of mastery yet because we don't control how we think and how we feel at every given moment, and we lose track of where we left our, how you say it is, where we left our last thought about the subject that we want to change. And the second trap that we get into is, I want to change this, I want to change this, I want to change this. But all the time we are referring to what we don't want in our lives, which is what I just figured out. I was like, yaar, main hi kar rahi hu. What the hell? So, and the third part is we need absolute clarity and focus to manifest. If we say, oh, my thoughts have to manifest, then clarity, focus, and will. I feel these are the three factors necessary to create any kind of change in my life. Because without clarity of what I want, I'm going nowhere. Without focusing on where I want to go, I can't get there. And without the willingness rather, to think in those terms, even though I can't see it happening now, I have to have faith that it will happen. So I have to be willing to have that kind of faith. And the fourth thing I always think of is having the courage to have the faith, because most of the times, like, doubts kill what I want in life like faster than I can say no. I've already Oh, doubted and I've already gone through yeah. the whole Okay. process. Yeah. So we all are on the same page till now that this is what we all feel. And there have been numerous books and literature that we have read in terms of law of attraction, The Secret, and the likes, and by Esther and Jerry Hicks, Ask and It Is Given, and Think and Grow Rich, the like legendary book by Napoleon Hill, and many such books who have said that. And today I'm going to present uh, something more about that, or I would rather say above that, which is a philosophy from Colin Tipping based on radical forgiveness and radical manifestation. Some of the things that you would hear are more or less the same, and then there is a point of view which is above, which is more of a spiritual point of view about manifestation. Okay. So, uh, uh, many of these, like quantum physics and spiritual beliefs, they have one thing in common, which is also in Vedas, is that if there is abundance in the universe, जो ब्रह्मांड है वहां पे अथाह मात्रा में, मतलब अनलिमिटेड मात्रा में सारी चीजें उपलब्ध हैं. इट्स ऑल्सो रिफर्ड टू एज द लॉ ऑफ सप्लाई. In there is a very like a beautiful book called Working with Laws. Raymond Holliwell is the author, and he has given 11 laws of the universe. It's beautiful. It's like very very true. Many of these laws you can see, and it's a very good understanding of the universe, how the universe works. So it's not by coincidence, by default, that things are happening. Everything is governed by certain laws. And there is a law of supply which says that
whatever we have asked for, whatever desires have come to us, they have come because it's already there in that universal supply. जहाँ पे वहाँ पे desire तभी आई क्योंकि वहाँ पे already present था, उसका होना संभव है, इसीलिए वो डिजायर मेरे दिमाग में आई, किसी के भी दिमाग में आई, वो मेरे को वो इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे को ये करना है या करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है और उसको करने के लिए जो भी रिसोर्सेस हैं वो सब अवेलेबल हैं. So there are references in Vedas that the universe is abundance. There is something like from the abundance was scooped abundance, and still abundance remained. Yeah, so I may have jumbled the words somewhere, but that is the gist of it. So there is so much abundance in the universe that कितना भी आप उसमें से ले लो खत्म ही नहीं होगा. इतनी बरकत है वहां पे, इतना अवेलेबल है और इतने रिसोर्सेज, इतना सब कुछ है कि आप बस उसको आपको रिसीव करना है, आप लेते रहोगे और वहां से आता रहेगा. तो जो भी हमने सोचा है वो संभव है, वो पॉसिबल है. तो दैट इज एन असम्पशन, दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग. Yeah. So the whole of radical manifestation is based, one of the assumptions, the laws that we believe in, is that there is no shortage of anything. Whatever we desire, actually we have to trust that we deserve it. So many a times, though we are thinking about it, though we want it to manifest, as सुषमा वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, हमारे डाउट्स आ जाते हैं, हमारे फियर्स आ जाते हैं, और एक और चीज हमारे नेगेटिव बिलीव्स कि मैं इसको इतना डिजर्व भी करती हूँ क्या, मुझे $1 million चाहिए पर मेरे में तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं डिजर्व करती हूँ क्या, एम आई वर्दी. So we have a lot of deservability issues and the issues around worthiness. So another thing why we don't manifest is we don't trust that we are worthy enough and we deserve all the good things in life. Okay, and उसके लिए बहुत ज्यादा इस चीज में कि मैं डिजर्विंग और वर्दी के सर, पंकज सर अगर आप मुझे वर्ड्स दे दें हिंदी में तो अच्छा रहेगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहे. तो सुषमा जी के इसके लिए लिए, खास कर. हाँ इसके लिए नहीं, इसके लिए शब्द मुझे भी पता है, लायक. मैं इसके हाँ, लायक हूँ या नहीं. मैं लायक हूँ और दोनों लायक, का मैं पात्रता. हाँ, पात्रता. मैं हाँ, है ना कि मैं वहां पे मेरे लिए हाँ, उसके लिए मैं एक और वर्ड होता है कि मैं जिस चीज के लिए मैं एलिजिबल हूँ वही मैं चीज मांग रही हूँ क्या. तो मैं मैं योग्य एलिजिबिलिटी हूँ. इश्यूज भी हो सकती हैं. हाँ, Yes. यस दीपक जी, यू वांटेड टू से समथिंग. काबिलियत. यस, मैं योग्य हूँ इसके लिए. हाँ, वो काबिलियत है, योग्यता काबिलियत. मतलब आपकी है, पर डिजर्व और वर्दीनेस का थोड़ा अलग सेंस है. मैं डिजर्व करती हूँ क्या या मैं वर्दी हूँ क्या उस चीज के लिए. जैसे किसी के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट या शेम हो सकता है ना कि मैं उसकी वजह से भी वो नहीं अपने तरफ आने दे रहे हैं, वो रिसीविंग उनकी नहीं है ना. तो वो उससे भी हमारे अंदर वो हमारे जो नेगेटिव बिलीव्स हैं वो हमारे इतने स्ट्रांग हैं, भले से हमको डाउट और फियर नहीं हो रहा है, लेकिन इतने दबे छुपे हुए हैं वहां पे, हमारा जो शैडो है वो उसको मैनिफेस्ट नहीं होने देता है. तो बहुत कुछ उसमें हेल्प करता है रैडिकल फॉरगिवनेस और रैडिकल सेल्फ फॉरगिवनेस. तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, आप एक हायर वाइब्रेशन पे होते हैं, तब आप बहुत इजीली चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, बजाय उसके कि जब आप गिल्ट और शेम में आप जी रहे होते हैं. तो दैट इज another part that affects whether we are able to manifest things or not. एक और जो है, एक और
एरिया है जो कि मैनिफेस्टेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, वो है जब हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो जब हम जजमेंट्स में होते हैं, जब हम लोगों को मेरे पास नहीं है उसके जिम्मेदार मेरा हस्बैंड है, मेरी परवरिश है, मेरे माँ बाप हैं ना, मेरा एनवायरनमेंट है, मेरे देश में उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, मैं लड़का हूं या लड़की हूं। तो व्हेन वी आर जजिंग, व्हेन वी आर ब्लेमिंग अदर्स, then we will not be able to manifest. And the one of the, like, forgiveness is the uh, a beautiful way of getting out of victimhood, and radical forgiveness तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं कॉल पे जो ऑलरेडी रेडिकल फॉरगिवनेस कर चुके हैं, वर्कशीट्स कर चुके हैं, पंकज सर हैं, आई थिंक ब्रेंडा ने भी किया है। तो देन यू विल नो दैट जब हम फॉरगिवनेस में रहते हैं, जब हम ये चीज मानते हैं कि सब चीजें एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। अगर मेरे लाइफ में जो मैंने मांगा है अभी शो अप नहीं हुआ है, तो प्रोबेबली मैं तैयार नहीं हूं अभी उस चीज के लिए। मेरे अभी भी कोई नेगेटिव बिलीव्स हैं जो कि उसको मेरी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, और इवेंचुअली जब वो हट जाएंगे तो वो चीज मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। जब हमारा वो फेथ इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तब भी हम डाउट्स में चले जाते हैं, वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज फेलियर्स। मैंने मैनिफेस्ट करने के लिए सब कुछ किया, मैंने रोज वो अफर्मेशंस बोले, मैंने रोज विजुअलाइजेशंस किए, फिर भी नहीं हुआ। तो भगवान मुझसे, या तो भगवान मुझसे खुश नहीं है, या मैं ठीक से कुछ नहीं कर रही हूँ। बट वी then we judge, we blame others, we blame ourselves. Yeah. So when we are in that state, our vibrations are low. अब एक बहुत अच्छा काम किया है डेविड हॉकिंस ने, एक बहुत ही सुंदर बुक लिखी है उन्होंने, पावर वर्सेस फोर्स। और उन्होंने साइंटिफिकली वाइब्रेशंस मेजर किए हैं कि जब हम अलग अलग इमोशंस में रहते हैं, हमारे इमोशंस हमारे स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करते हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने उसको नंबर दिए हैं, फिगर्स दिए हैं डेविड हॉकिंस ने। एक हॉकिंस स्केल होती है, आप गूगल करके देख सकते हैं, वहां पे आपको दिखेगी। तो वहां पे जो लोअर स्केल पे हम रहते हैं वो होते हैं शेम। हम शर्मिंदगी में होते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, या मैं इनहेरेंटली ही, कुछ लोगों को इतने शेम में वो लोग रहते हैं कि मैं इनहेरेंटली ही खराब हूं, आई एम अ बैड गर्ल। तो उनको ये फीलिंग रहती है। उन्होंने कहीं से भी जो उनके आसपास जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह से बोला गया, उनको उसकी वजह से हो सकती हैं, पास्ट लाइफ से हो सकती हैं, वूम्ब में हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनको ये बिलीव हो जाता है। तो वो शेम में हो सकते हैं, या वो बहुत ज्यादा मतलब इनडिफरेंस, अपैथी में, है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर नॉट लाइक, दे बिकम टोटली इनसेंसिटिव, दे मे बी इन लाइक डीप ग्रीफ और सैडनेस, और दे मे व्हेन दे आर इन फियर, लाइक बहुत ज्यादा जब इनसिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फियर में हैं, तो वो बहुत लो वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम लो वाइब्रेशंस पे होते हैं तो हमारा, हालांकि हम सोच रहे हैं, पर हमारा फियर वगैरह जो है इतना हमको ओवर पावर कर देता है कि हमारे मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाते हैं। तो अनदर थिंग, इफ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट things in your life, if you want to manifest like something great in your life, first work on raising your vibrations. Higher vibrations पे क्या होता है, even anger is a higher vibration than fear. When you are able to express your anger, when you are able to feel your anger, okay, so then comes pride, courage, neutrality. When you are able to trust the universe, then it's it. जब आप करेज में होते हैं, आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, आप न्यूट्रलिटी में बिलीव करते हैं, दैट द यूनिवर्स इज न्यूट्रल। यूनिवर्स किसी को बैठ के जज नहीं कर रहा है,
भगवान का काम एक जज की तरह नहीं है कि वो देखे कि अच्छा इसने गलत गलत काम किया है, इसको पनिशमेंट मिलेगी, ये अच्छा काम कर रहा है, इसको रिवॉर्ड मिलेगा. सो व्हेन वी स्टॉप सीइंग द यूनिवर्स, the Lord, the Almighty, as judgmental force, rather than we see it as a benevolent, abundant, forgiving, provider who is like willing to give to everyone. जो भी मांगेगा उसको मिलेगा. तो डिजर्वेबिलिटी के इश्यूज जब खत्म होने लग जाते हैं और हम ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स, भगवान, सब लोग हमारी साइड पे हैं, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, कुछ भी मेरे अगेंस्ट कोई साजिश नहीं है. यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट कोई साजिश नहीं कर रहा है, मुझे कोई पास्ट कर्मा की पनिशमेंट नहीं मिल रही है. कर्मास हैं मुझे गाइड करने के लिए, मुझे मेरी ग्रोथ के लिए. Am I making sense? Any questions, any thoughts on that? This is a very deep, this is difficult to digest and moreover difficult to remember in difficult times. Any questions, any thoughts, any contradictions to what I तस्नीम just जी, said? जैसे मुझे लगता है कि जैसे मैं चाहती हूँ बहुत रिच पीपल्स को जब देखती हूँ कि उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं और मतलब लग्जरी कार्स हैं और ये सब हैं, तो मैनिफेस्टेशन जब भी मैं करने जाती हूँ कि मैं इतनी रिच हूँ, तो एकदम से हो जाता है कि ऐसा तो कैसे पॉसिबल है. तो मतलब ऐसा मेरे पास क्या होगा जो मैं इस तरह से रिच हो पाऊंगी. तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रांग अपने आप को मतलब मन को रखें. तो ये इसमें एक सेंटेंस में या कुछ वैसा नहीं है, या इसमें विल पावर नहीं है सुषमा जी. देर इज लाइक थॉट्स से थ्रू मैनिफेस्ट करने के पहले आपके नेगेटिव बिलीव्स को देखना बहुत जरूरी होता है, उनको क्लियर करना ना. तो इसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. अनलेस someone works with you, a coach works with you, और आपकी चीज नहीं पता करते, तो वो नहीं बता सकता है. लेकिन एक चीज हो सकती है कि मैं डिजर्व नहीं करती, इतनी रिचेस मैं डिजर्व नहीं करती, मैं उसके लायक नहीं हूँ. या ये हो सकता है एडवर्स एसोसिएशंस हो जाते हैं हमारे, कि पहले से ही हमें बचपन से हमको किसी ने बोला होता है कि जो लोग वाकई में जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, वो या तो वो अपनी लाइफ में बहुत नाखुश होते हैं, या कि उनके रिश्ते खराब होते हैं, या वो लोग इलीगल वेज में काम कर रहे होते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं. तो आपका क्या बिलीफ है वो देखना पड़ेगा आपको, जो कि आपको रोक देता है. तो फिर हमको हमारे सबकॉन्शियस में ये फियर होता है कि अगर मैं किसी वजह से, मेरे पास में इतने पैसे भी आ गए, तो मैं करप्ट हो जाऊंगी, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी, मैं स्पिरिचुअली वहां जहां पे मैं जाना चाहती हूँ, मेरी सोल जहां मुझे ले जाना चाहती है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. या मुझे किसी को डर हो सकता है कि मैं ना, जब रिच में इतनी रिच हो जाऊंगी तो मेरे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मैं अपने लोगों को कहीं पीछे छूट जाएंगे वो मुझसे. Am I making sense, Sushma ji? So it's not that simple to Yes. answer. There is Yes, not one particular belief that one can say, unless you work like that. That is why we have programs like one-on-one sessions or group coaching sessions, जहाँ पे हम in depth उन beliefs को देखते हैं, और फिर आपके लिए वो आपका पर्टिकुलर आपका वो रहेगा कि आप उसको कैसे रिमूव करें, उस पे काम करते हैं, उस बिलीफ को हम हटाते हैं. पर वो बिलीफ तक पहुंच पाना जरूरी है, पहले वहां तक हम डिग कर पाए उस चीज को. राइट? यस, वेरी ट्रू. सूरज, आपने जो लिखा, आई टोटली एग्री विद दैट. Okay, so when I was talking about this, like how to so work on your vibrations, raise your vibrations first of all, like do something, meditations, then
some healing work, all of those like generosity, kindness, gratitude, forgiveness, all of these works, they increase your vibration. So just try, like, and when you are at a higher vibration, when you cross that 250 mark, then actually you become so powerful that you are able to raise the vibrations of others. Don't you feel that when कोई किसी से आप बात करते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, और अगर वो लो वाइब्रेशन वाला बंदा होता है, तो आपको बहुत घुटन होने लगती है, आप दूर भागना चाहते हो ना कि इससे वापस मुझे नहीं मिलना है, या आपको ऐसे बहुत ऐसे सकिंग एनर्जी फील होती है। दूसरा कोई होता है जिससे मिलके बहुत खुशी होती है, आप उनके साथ में रहना चाहते हो, उनके बारे में, आप उनके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। वो लोग पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे होते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, वो लिमिटेशंस की बात नहीं कर रहे होते हैं। वो आपके मन में कोई आपसे एनवी नहीं रखेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि वो आपको ज्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनको आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है। दे बिलीव इन एन अबंडेंट यूनिवर्स के मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किसी और से ईर्ष्या करने की, कंपैरिजन करने की, या उससे नीचे खींचने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा है यूनिवर्स के पास देने के लिए कि उसको मिल गया है तो मुझे भी मिल सकता है, और उसको कम मिलने की जरूरत नहीं है। सबके लिए अथाह है यूनिवर्स के पास में, या तो वो उन लोगों का वाइब्रेशन ही अलग होता है। और एक उससे भी एलिवेटेड किस्म के लोग होते हैं, जैसे है ना कि जिनके साथ में जब आप होते हो, वो कुछ भी ना बोले फिर भी आपको लगता है कि वो अपने आप आपको भी एक ऊंचे उसमें एक वाइब्रेशन में खींच ले जाते हैं ना। कुछ प्लेसेस में भी वो वाइब्रेशन होते हैं, और कुछ लोगों में भी वो वाइब्रेशन होते हैं ना। तो जब हम अगर हमारी वाइब्रेशंस को हाई करें, इतना हाई करें, हम वो 250 न्यूट्रलिटी के मार्क को जब हम क्रॉस करने लगते हैं, और जो पूरा रेडिकल वाला वर्क है, रेडिकल फॉरगिवनेस, रेडिकल सेल्फ फॉरगिवनेस, हमको 250 के भी ऊपर 300, 350, 400 और 500 हाईएस्ट स्केल लव एंड रेवरेंस वाली डेविड हॉकिंस ने दी है। ये पूरा जो उनका काम है साइंटिफिकली प्रूवन वर्क है। तो जब हम वहां पे चले जाते हैं तो हम दूसरों को भी खींच ले जाएंगे। 500 का मार्क हमारा टारगेट होना चाहिए, पर अगर हम 250 के ऊपर भी हम जाने लगते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस अलग होते हैं। और पूरा रेडिकल फॉरगिवनेस, सेल्फ फॉरगिवनेस, रेडिकल एम्पावरमेंट, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रेडिकल मैनिफेस्टेशन, इन्हीं वाइब्रेशंस को राइज करने में हमको तरीके देता है, हमको हेल्प करता है उसमें। तो एक बात किसी और ने भी बोली थी, साल ने बोली थी कि क्लैरिटी और फोकस, अगर मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूज्ड, अगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई हूँ और मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ खाना, अगर मैं ही कंफ्यूज्ड हूँ, अच्छा खिचड़ी ला देना, नहीं नहीं तुम ऐसा करना, रोटी सब्जी ले आना, फिर सब्जी कौन सी ला देना, कोई भी सब्जी ला देना, वुड माई ऑर्डर्स बी फुलफिल्ड? नो ना। वो भी बेचारा वेटर भी जो मेरा ऑर्डर ले रहा है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। सो व्हेन यू आर पुटिंग योर रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्स, व्हाट यू वांट, you have to be very clear on that. And another thing that Colin Tipping adds to it, why you want it, क्यों चाहिए? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है उसको बहुत आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अलाइन करने के लिए ये क्यों का आंसर होना बहुत जरूरी है ना। तो जब आपको क्लियर है कि आपको क्यों चाहिए ये, आपका ये वो भी आपको स्टेट करना बहुत जरूरी है। एनी थॉट्स ऑन दैट? तो मेरा इंटेंशन है, तो मतलब मेरा जो क्या चाहिए, मतलब मेरा क्या इंटेंशन है। अब जब इंटेंशंस को तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ इंटेंशंस। तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ इंटेंशंस हैं वो जो सारी हम
मटेरियलिस्टिक चीजें जो मांगते हैं, जो हमारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, घर, मकान, फेम, कितना मुझे इतनी शोहरत मिले, इतने लाइक्स मिले मेरे वीडियो पे, कितने कितने लोग मेरे कॉल्स पे आए, मेरी कितनी अर्निंग हो. Those are all materialistic desires. There is nothing wrong with materialistic desires. We as human beings, we are supposed, because they drive us. वो हमारे ड्राइविंग फोर्सेस हैं, वो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, जिससे कि हमारी ग्रोथ, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है. तो उनको रॉन्ग न बनाएं, पहली बात. बट अवेयर रहें कि हाँ, ये इंटेंशंस लो लेवल के इंटेंशंस हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं. ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही है, और उसको उससे अटैच न हो ना. तो अनदर थिंग that doesn't create things, doesn't let things manifest is when we get attached. I asked for this, मैंने ये मांगा था, इस टाइम फ्रेम में मांगा था, इस टाइम फ्रेम में शो अप नहीं हुआ, तो मतलब मैं फेलियर हूँ, मेरी कोशिशें नाकाम है, या ये यूनिवर्स है वो मुझे प्यार नहीं करता है. I don't deserve, I am not worthy, I am not loved by God. कुछ भी जो भी हमारे अंदर आ जाता है उसके बाद में, जो अटैचमेंट से आता है. सो बीइंग डिटैच्ड. So this is what many books like Think and Grow Rich don't talk about, is detachment. So it's that spiritual perspective that we add to our intentions, like knowing the level of intention. मेरा जो intention है, जो desire है, वो किस level का है, और मुझे उससे तो भी attachment न रखना, ये सीख पाना. यही चीजें मुश्किल होती हैं, जिसकी वजह से नहीं हो रहा है. इसमें अगर हमने मास्टरी प्राप्त कर ली, तो सब कुछ इवेंचुअली जो भी हमने मांगा है वो इवेंचुअली शो अप होगा ही होगा. राइट? डू आई मेक सेंस गाइस? सो हमने फर्स्ट लेवल ऑफ इंटेंशंस की बात करी, जो कि हमारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, जो हमारे बेसलाइन इंटेंशंस भी उसको कॉलिन टिपिंग ने बोला है. Now, next level of intentions would be transformational intentions. तो transformational intentions ये कि मैं मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस अलावेंस डेवलप करना चाहती हूँ. मैं जो है बहुत बहुत एक लविंग पर्सन, एक केयरिंग पर्सन बनना चाहती हूँ. मैं अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ, मैं भी फेवरेट चाइल्ड हूँ गॉड की, और मेरे को भी वो सब मैं वर्दी हूँ हर चीज की. इस बिलीफ को मैं अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ. या मैं आप है ना, जो कि मैं अपना लाइफ पर्पस जानना चाहती हूँ. These would all be transformational intentions, जहां पे कि आप आपके लेवल ऑफ बीइंग पे चेंज होते हो. Now, many of your materialistic desires can be easily, आप उसमें एक अपना उसको अपग्रेड कर सकते हैं. उसमें आप कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल डिजायर्स अटैच कर सकते हैं, ताकि आपका लेवल ऑफ इंटेंशन एटलीस्ट सेकेंड लेवल पे चला जाए. Now, for example, I want a red Ferrari. It is a totally materialistic goal. और मुझे अंदर से पता है ना, तो मेरे पास में इतने पैसे हैं, इतने करोड़ों रुपए हैं. मैं न मुझे ये भी पता है कि ये मटेरियलिस्टिक गोल मेरा शायद अचीव हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं उसके लिए मेहनत करूंगी भी कि नहीं करूंगी. बट देन इफ आई अटैच इन दैट के मेरे अंदर एक बिलीफ है, अगर मेरा है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और इतने पैसे आने से मैं नॉन स्पिरिचुअल हो जाऊंगी, और मैं उस बिलीफ को तोड़ना चाहती हूँ, तो मैं उसके साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशनल उसमें गोल भी जोड़ दूं इस फरारी के साथ में, कि इससे मैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनूंगी, मैं खुद चेंज होंगी, कि कोई भी क्लास से आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है, वो संभावना है,
और मैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनूंगी कि देखो अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि अगर संसार में एक पर्सन कुछ कर सकता है मतलब वो पॉसिबिलिटी सबके लिए अवेलेबल है। इफ वन पर्सन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। तो अपने जो भी आपके जो गोल्स हैं क्लैरिटी लाओ उसमें, और उसमें आप ये इंटेंशंस को एक एटलीस्ट आप ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल पे हम जब ले जाते हैं, या फिर हम जब बिजनेस में हम कोई बहुत ज्यादा हम चाहते हैं कि बिजनेस में मेरा बिजनेस एक्सपैंड करना है। अब अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो यू विल हैव टू बी अ हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन, you'll have to have a good relationship, because most of the businesses thrive on relationship। तो आपको कि बहुत सारे लोगों के साथ में अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना पड़ेगा। आपको अब आपके जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं पैसे के लिए वो छोड़ने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे मतलब आपको बहुत सारे लोगों का भला करना पड़ेगा बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज यू विल नीड अ बिगर टीम। So you can add a lot of transformational and even the next level goals with your materialistic desires, so that the universe sees that सिर्फ आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो। यूनिवर्स एक्सपैंड होना चाहता है, यूनिवर्स हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके जितने हायर लेवल के इंटेंशंस होंगे उतना ज्यादा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। तो अपने अपने उन इंटेंशंस में वो एलिमेंट्स को डालिए। एम आई मेकिंग सेंस? एम आई एडिंग समथिंग फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी न्यू? Any thoughts? Yeah, okay. So then the third level of intentions are transpersonal intentions। ट्रांसपर्सनल इंटेंशंस जो कि आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, आप एक सोशल कॉज के लिए काम करना चाह रहे हो, आप कुछ से वीमेन एम्पावरमेंट करना चाह रहे हो, आप चाइल्ड अब्यूज रोकना चाह रहे हो, आप एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाने के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आप एनिमल्स के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आप फॉरेस्ट में कुछ करना चाह रहे हो। Those are totally transpersonal goals. So transpersonal intentions are the highest level of intentions, and when you have them, you just know that the universe would support you. The universe would like will be always on your side. Okay, so add those elements of transformational and transpersonal uh, intentions in your even your materialistic desires, and then you would see a change. You would see how things work out. So so this is being even called refer upwards. So you might start with a low level intention, which is a materialistic intention, but then you refer it upwards, how it would transform you. So when you write your why you want it, because it will change me, it will change how I behave, how I be with people, what I would become in the process. So that if you when you add that, and when you add even when you click how it will benefit the universe, वर्ल्ड में क्या चेंज होगा, मेरी सिटी में क्या चेंज होगा, मैं ये बिजनेस मेरा ग्रो करेगा तो कितने कितने और लोगों को फायदा पहुंचेगा, या यूनिवर्स में क्या क्रिएट होगा उसके थ्रू। जब आप उस चीज से प्रेजेंट रहते हो तो आपके मैनिफेस्टेशंस और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, राइट। सो देयर इज अ होल like process of radical manifestation which helps you like starting right from how do you distinguish between whether whatever जो आप मांग रहे हो वो गोल तो नहीं है, या वो इंटेंशन आपका कोई मैनिफेस्टेशन ही आप मांग रहे हो, क्योंकि गोल्स को प्राप्त करने का पूरा तरीका अलग है, मैनिफेस्टेशन का अलग है। तो हम यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर and then it takes you through steps. There are basically 6 major steps that you go through, and
जहां पे कि आप पूरा विजुअलाइज करते हो उसको, आप पूरा ग्रैटिट्यूड के साथ में वो चीज मैनिफेस्ट हो गई, वहां तक आप फील करते हो, जो कि हम बहुत सारे दूसरे वर्क्स में भी करते हैं, जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं उसमें भी हम करते हैं। पर रेडिकल मैनिफेस्टेशन उसके आगे आपको ले जाता है कि जहां आप सीखते हो कि वो आप उस वहां तक विजुअलाइज करने के बाद में आप कैसे उससे डिटैच हो जाओ, आपका अटैचमेंट छोड़ो और फिर आप उसको सरेंडर कर दो डिवाइन। So it has additional steps which makes manifestation still more powerful, and also you keep total faith in the divine। आप पूरा भरोसा रखते हो कि अगर ये कोई चीज सब कुछ करने के बाद में भी तो वो नहीं अगर मैनिफेस्ट हुई है तो वो हायर गुड में नहीं थी। तब जब आप सरेंडर कर पाते हो कि जो भगवान की जो प्लानिंग है वो मेरी प्लानिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर ये नहीं आया है तो भगवान मुझसे इससे भी ज्यादा अच्छा कुछ देना चाहता है, इसलिए वो छोटी चीज नहीं आई, क्योंकि मेरे लिए स्टोर में उससे बहुत कुछ अच्छा, उससे बेहतर कुछ चीज मेरे लिए स्टोर में है। तो वो आपको उस माइंडसेट में ले जाता है और आपको बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट और स्पिरिचुअली आप ग्रो होते हो और आप अलाइन होते हो, आपके पर्पसेस डिवाइन पर्पस से अलाइन होने की जो जर्नी है उसमें आप ग्रो करते हो। मैं रेडिकल फॉरगिवनेस की कोच हूँ और मैं रेडिकल मैनिफेस्टेशन के 1-on-1 सेशंस कराती हूँ। आपका कोई गोल है, आप करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड माय सेशन। मैं इससे बस मतलब स्टार्ट ही कर रही हूँ रेडिकल मैनिफेस्टेशन के सेशंस। तो मेरा एक इंट्रोडक्टरी ऑफर रहेगा जो कि फर्स्ट 5 लोगों के लिए मैं ओपन करूंगी, जो कि एक बहुत ही एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल रहेगा। मैं आप लोगों को ग्रुप पे वो मैं ऑफर डालूंगी। आप जो भी लोग उसको चूज करते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप इस ये नई तरह के जो एडवांस्ड लेवल का मैनिफेस्टेशन का तरीका है उससे उसको आप सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1-2 वर्कशीट्स मेरे साथ में करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि आपकी इतनी कोचिंग हो जाती है कि आप उसके बाद में बहुत कुछ आप अपने लेवल पे खुद कर सकते हैं, अनलेस के आपके गोल्स आपके बहुत ज्यादा बड़े हैं और आपको फिर से एक कोच की जरूरत है जो कि आपको वो वहां तक ले जाए जहां तक के आप जाना चाहते हैं। Any questions, any thoughts, anything that anyone would like to share? थैंक यू सो मच तस्नीम जी, बहुत सारी चीजें क्लियर है Thank you. और मुझे अच्छा लगा आपने हिंदी में समझाया। मैंने पहले भी 1-2 बार ज्वाइन करी थी क्लास, तो मेरे को मतलब आपका ये सेशन वगैरह तो इंग्लिश मुझे इतनी क्लियर नहीं, तो मैं पीछे हमेशा रुक जाती थी। आज मैंने कहा मैं बोलती हूँ कि जी, मुझे बहुत अच्छा हिंदी किया चाहिए, आपने पूछा। तो और हो मुझे सकता है अच्छा बहुत सारे लोगों के लिए वो एक गिफ्ट रही, क्योंकि आपने मांगा, हाँ। आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपने यस, थैंक यू। मैनिफेस्ट किया वो ये सेशन हिंदी में। ओके, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था और मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, इसीलिए मैं आपको वर्ड से कोई मेरी तैयारी नहीं थी इसको हिंदी में बोलने की। और मेरे लिए मतलब मेरे लिए इंग्लिश बहुत नेचुरली मेरे को वर्ड्स, क्योंकि सारी जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो कोर्स मटेरियल्स हैं इसके सारे वो इंग्लिश में हैं, तो इंग्लिश में तो वो वर्ड्स आ जाते हैं, बट उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कई बार मुझे भी वर्ड्स नहीं पता होते हैं कि क्या शब्द इसके लिए सही रहेगा। पर फिर भी जो भी मैंने कोशिश करी हिंदी और नहीं, इंग्लिश बहुत का अच्छे मिक्स से करने का, समझाया, आई थिंक। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया। और थैंक यू सो आपको मच थैंक यू सुषमा इसलिए जी। भी कहूंगी कि सेशन मेरे लिए इसलिए था कि मैं राइट नाउ अमेरिका में हूँ, और कल मैंने आपका देखा कि यार मैं सुबह यहाँ पे 6 बजे ज्वाइन कर पाऊंगी, उठूंगी या नहीं, तो जी, मैंने कहा मुझे करना है, और राइट मैं उठ गई और कर लिया ज्वाइन। तो मुझे ग्रेट। इतना अच्छा लग रहा है कि सेशन मेरे लिए था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुषमा जी फॉर रिसीविंग। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्ते तस्नीम जी, जी, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते कैसे जया, हैं आप? हाउ आर यू? आप दुबई में हो? अभी कहाँ हो? यस, 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 शारजा। After शारजा में हो, long time, राइट? I'm attending your call. यस यस। Just today, I got the time and opportunity to attend this.
And I have one question about manifestation because we fail in manifesting when we are manifesting something for the family, something coming through from our any relationship in the home. So there, I think we attach too much, and when it is come, when I feel in a personal level, when I want to manifest my for myself, many times I things get manifested easily. And wherever for my personal also, wherever I got attached, it is not happening. Hmm. And secondly, my major question for today is this: when I want to manifest something through one of my relationships at home, somebody to behave like this and somebody to think like that, and so that is not manifesting, right? So what is the Actually, process that for is those things? okay. उसको मैनिफेस्टेशन नहीं बोलते जया जी, थोड़ा सुन हाँ, के या खराब लगेगा, उसको कंट्रोल बोलते हैं। नहीं, सॉरी। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल मैं मतलब डे मैं टू डे बताती बेसिस हूँ। पे नहीं, बट समथिंग टू हैपन इन माय फैमिली ऑन फैमिली आई लेवल। गॉट मैं या मैं आपको बताती हूँ। इवन अगर एज अ मदर मैं हूँ और मैं हाँ, मेरे या बच्चे की भलाई के लिए कुछ चाहती हूँ कि ये बच्चे का ये एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ जाए या कुछ हो जाए, है ना? तो am I able, like, would I be, is it possible to manifest for others? To some extent you can contribute if, अगर वो भी वही चाहते हैं तो, है ना? हो सकता because है they are कि making मेरे, different choices, that's why my question is that how much हाँ, it is उनकी possible for चॉइसेस me. आप नहीं चेंज कर सकते हो। Yeah, that's what दैट my इज question is. कंट्रोल। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा Hmm. सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पर वो Hmm. कंट्रोल है। अगर आप कोई पर्सन कोई चॉइस मेक कर रहा है कि मुझे यही चाहिए है, और आप भी उसके मैनिफेस्टेशन में थ्रू विजुअलाइजेशंस, थ्रू गिविंग देम एनर्जी कंट्रीब्यूशंस, आप उसको किसी भी तरह से उसको आप सपोर्ट करते हो, तब तो आप उसकी मैनिफेस्टेशन में आप हेल्प करते हो। लेकिन अगर उसकी चॉइस अलग है और आप चाहते हो कि वो ये चॉइस गलत है, तो वो क्या हुआ? पहली चीज तो कि आपने जजमेंट कर दिया उसका कि उसकी चॉइस गलत है, हाँ? और वो आप हम उसकी चॉइस चेंज करवाना चाहते हैं। एंड आई टोटली गेट यू जया जी, एज अ वाइफ, आई एज अ मदर, आई टोटली गेट यू दैट इफ माय सन My से question is as a mother today. as a mother, my son is an addict, say, फॉर एग्जाम्पल इफ माई सन इज एन एडिक्ट, है ना, और मैं चाहती हूँ कि वो उसका एडिक्शन छूट जाए, तो कुछ गलत तो नहीं है ना? मेरा तो, मुझे तो लगेगा मैं तो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, पर उसके सोल के प्लान में, उसकी सोल की ग्रोथ के लिए वो एडिक्शन जरूरी है, ये मुझे कैसे पता? And this brings me to the question that all It's my like life. questioning, can I complete? Mhm. If I do that, because that is very natural, that is like हमारा जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स में वो आता है, बट देन कि हम हमारे हमारे अपनों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, उनको हम, हमारा कंट्रोल कहीं पे उस प्रोटेक्शन की हमारी नीड की वजह से भी आता है कहीं पे, वी डोंट वांट टू सी देम इन डिफिकल्टीज, बट देन we are in a way we try to हम intervene in divine planning. we have lost trust कि जो डिवाइन कर रहा है वो सही नहीं है, और हम, मुझे इंटरवीन करने की जरूरत है। दिस may not be easy to take. I totally get you, Jaya ji, and because I have talked to you, I know you, I'm taking this liberty to tell this to you, Yes, yes. because I know you will think over it and you will आप वो ग्रहण कर पाएंगी, उसको एक आप वो एक वो सोचेंगी उस जर्नी पे। एक वो जर्नी करने के बाद पूरे इवेंचुअली आई गेट टू द पॉइंट कि ये गॉड का ही प्लान होगा, पर फिर भी एग्जैक्टली, और उसमें फेथ। दूसरा मन फिर भी अपना जिद पे है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। ऑल माई लाइफ आई प्रेड फॉर दिस, आई एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन एंड देन इट इज हैपनिंग डिफरेंटली। सो देन आई थिंक कि आई नेवर थॉट दिस इज कमिंग टू मी लाइक दैट. वहां पे But after रेडिकल that, I फॉरगिवनेस processed. बहुत हेल्प करता है जया। It has taken 1 year for me to come to the point, and still दिल कुछ और चाहता है और हो कुछ और रहा है, तो वही मैंने कहा मैनिफेस्टेड यहाँ लागू होता है कि नहीं. देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, मुझे लगता है वहां पे हाँ. रेडिकल फॉरगिवनेस ज्यादा लागू करता है।
तो अच्छा जो पर्सन की चॉइस कोई और अलग चॉइस मेक कर रहा है, वो कुछ आप जैसा चाहते थे, आपने बहुत रिलेशनशिप पे, प्रोबेबली अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, आपने बहुत मेहनत की यस है, उस पर वर्क करा है, पर लेकिन वो कुछ और कर रहा है जो आप चाहते हैं, तो वहां पे आपको सरेंडर करना है वहां पे। और वो सरेंडर, और उसमें कहीं पे आपकी भी कोई नेगेटिव बिलीफ है, वो फाइंड करने में, आपकी नेगेटिव बिलीफ से आपको रूबरू कराने में, और उस सरेंडर में यस जाने के लिए रेडिकल फॉरगिवनेस काम करता है। तो और वो और मैंने बहुत रियलाइज ये की भी है। तस्नीम जी, हम्म। ये भी मैंने रियलाइज किया कि उसके बाद ही, मेरा ही थॉट था ऑपोजिट, इसी के लिए मेरे सामने आया है सिचुएशन। हाँ, तो पहले या क्या है ना कि जब तक हम कोई स्लेट है जिसपे हम लिख रहे हैं, कोई या व्हाइट बोर्ड है जिसपे हम लिख रहे हैं, जब तक वो क्लीन नहीं है, उस पे हम नहीं लिख सकते हैं, तब वहां पे जगह ही नहीं है, वहां पे कुछ और लिखा हुआ है। तो बहुत बार पहले, मैनिफेस्टेशन के पहले फॉरगिवनेस जरूरी हो जाती है। अगर बिना फॉरगिवनेस के हम मैनिफेस्टेशन में कूद पड़ते हैं, तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे जो जजमेंट्स हैं, तस्नीम जी, इसको हमारे क्लियर बिलीफ करिए से ना, वो रह ये जाते हैं। रेडिकल, सॉरी, ये रेडिकल फॉरगिवनेस जो आप बोल ये रही हैं मैंने वो क्या पूरा है एक यानी? कॉल किया है सुषमा जी इस पे, गेटिंग पास्ट योर हर्ट्स। ये अच्छा, मैंने, है ना, तो मैं उसकी लिंक भी ग्रुप में फिर से, आप ग्रुप में हैं, मैं फिर से शेयर जी, कर दूंगी ग्रुप में। तो आप, है ना, ठीक। मतलब आप वो वाला कॉन्शियसनेस गिफ्ट कॉल्स वाले ग्रुप में हैं क्या? हाँ, इसी ग्रुप में हूँ मैं, जो अभी जिस ग्रुप में आपका ये आया है। हाँ, तो मैं उसमें फिर से शेयर कर दूंगी। ये मैंने 1-2 महीने पहले ये कॉल किया था, जिसमें मैंने पूरा रेडिकल फॉरगिवनेस के बारे में बात करी थी। तो जब तक अच्छा, हम उस वहां तक नहीं पहुंचते हैं, हम अपने जो विक्टिमहुड है, कि मैं कोई, मतलब मैं हालात की मारी हूं, या मैं मेरे आसपास के लोगों के बिहेवियर और उनका शिकार बन गई हूँ, है ना, तब हमारे, जब तक वो ब्लेम गेम्स नहीं खत्म होते हैं, हमारी, जब तक वो जजमेंट्स में से हम बाहर नहीं निकल जाते हैं, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाते हैं, या उस लेवल तक हो ही नहीं पाते। तो पहले, कहीं कई बार, मतलब ये, इसलिए रेडिकल मैनिफेस्टेशन के पहले रेडिकल फॉरगिवनेस कई बार जरूरी हो जाता है, कि पहले आप वो करो, फिर उसके बाद में जब आप पूरे अलावेंस में आ जाओगे, आप एक न्यूट्रल में आ जाओगे, जो मैंने आपको बताया ना जया जी अभी, के हमारे अलग अलग वाइब्रेशंस के स्टेट्स हैं, और जो न्यूट्रलिटी वाला है, जहां पे कि आप जजमेंट से बाहर निकल जाते हो, आप विक्टिम ऑफ द सिचुएशन नहीं रहते हो, बल्कि आप को क्रिएटर बन जाते हो, आप अपने आप को को क्रिएटर मानते हो यूनिवर्स के साथ में, है ना, कि मेरा चाहना और यूनिवर्स का, जो भगवान का चाहना, एक होने लगता है ना, कि मैं उसके यस अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, और मेरे को कोई शिकायत नहीं रह जाती है, ना भगवान से, ना लोगों से, ना हालात से। तब आप न्यूट्रलिटी में आ जाते हो, आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होता है, तब आपका वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, तब आपके मैनिफेस्टेशंस भी अलग लेवल पे होते हैं। थैंक यू सो मच। Yeah. So हाँ, you can go for first radical forgiveness with this person. यस फिर आप करेंगे, फिर आप जब रेडिकल मैनिफेस्टेशन पे आएंगे, तो आपको अलग लेवल के आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, जबकि हम रिजल्ट से अटैच नहीं होते हैं, पर फिर आपको एक अलग एनर्जेटिकली भी आपको अलग आपको फील होगा। ग्रेट, श्योर। तस्नीम जी, मेरा भी एक प्रश्न था कि जी। यदि हम अपने बच्चों के लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और बच्चों का भी यदि सेम थॉट हो कि वो भी चाहते यही है, तो आसानी से हो जाता है ना फिर वो? हाँ, हाँ, मतलब, आप उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, यू आर बैकिंग देम अप, एंड उनको भी बेटर है कि उनको भी सिखाएं, उनको भी एनकरेज करें कि वो खुद के लिए भी मैनिफेस्ट करें, और आप उनको, उनके साथ में जितने लोगों की उस वो इंटेंशन बढ़ता है, जैसे ये कॉल का वो नहीं है, लेकिन एक सिल्वा मेडिटेशन होता है ना, सिल्वा मेडिटेशन भी एक फ्रीक्वेंसी का, वो पूरा एक, मैंने उसका एक विजुअलाइजेशन का तरीका है, और उसमें बहुत सारे, जब बहुत बड़े तूफान आने वाले होते हैं, या कुछ होता है, फॉरेस्ट फायर्स लग जाती हैं, तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स मिलके एक साथ, मतलब उन्होंने पाया है कि पूरा एक तूफान ने अपना रास्ता बदल दिया,
कोर्स ही बदल गया, डायरेक्शन बदल गई तूफान की, जो कि पूरा एक कोस्टल एरिया को पूरा खुद डिस्ट्रॉय करने वाला था। बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलके उस पे मेडिटेशन किए उसको चेंज करने के लिए, और उसका पूरा कोर्स चेंज हो गया। वो अब उसने डायरेक्शन बदल दी तूफान ने, स्टॉर्म ने। तो जितने ज्यादा लोग का जो वो ग्रुप कंट्रीब्यूशन होता है, जब एनर्जी उस मैनिफेस्टेशन में अगर डलती है, और तब ये ज्यादा तब काम करता है जब हमारे गोल्स ट्रांसपर्सनल हो जाते हैं, जब हम दुनिया के लिए एक सोशल कॉज के लिए काम करने लग जाते हैं। तो जितने सारे ज्यादा लोग उस चीज पे करते हैं, तो उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लग जाती है। तो जी सुषमा जी, डेफिनेटली अगर आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स, एक आपका फैमिली का कुछ, आपकी फैमिली कोई इंटेंशन रखती है जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सब लोग मिलके उस चीज पे करते हैं, तो उसकी एनर्जीज और मल्टीप्लाई हो जाती हैं, हाई हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। जी। इसीलिए कुछ भी जैसे ग्रुप चैंटिंग करते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसीज हायर ही होती हैं हमेशा इंडिविजुअल से। आप शायद नारायण रेकी भी करते हैं ना सुषमा जी, तो जैसे आप लोग भी जो ग्रुप्स में चैंट करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स की अलग होती है। Jaya, was I able to answer your question? Yes. या सो यू हैव टू, जो सुषमा जी ने भी पूछा उससे भी आप देख सकते हैं जया, कि क्या आप, आपकी चॉइसेस और उस पर्सन की चॉइसेस जिसके लिए आप आपके बच्चे के लिए जो कर रहे हैं, दोनों अलाइंड हैं कि नहीं। नहीं तो उनसे बात करने की जरूरत है, व्हाट डू दे वांट, एंड यू कम टू लाइक अलाइनमेंट। क्योंकि अभी वहां पे वो भी सफोकेटेड फील कर रहा होगा, बच्चा भी, दैट आई एम नॉट एबल टू सेटिस्फाई माई पेरेंट्स इन सम वे। और अगर आप फॉरगिवनेस तो उसके साथ कर लोगे, तो बहुत सी बार, बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर बेसिकली आर हीलिंग एंजल्स, दे गाइड अस। He is happy by making his choice. It's about my acceptance, coming to my acceptance. The So talk then is you about have to me. forgive him. Then you Yeah. have to do forgive him, so that you will be able to, like, you will have, you be able to give them that, give him that freedom, that he'll be happy, and then you'll be able to bless him. Then this brings that all the freedom is given, then all this blame, like you say, na, you mentioned, we blame the universe, we blame the our कि हमने इतना फ्रीडम दिया, ये दिया, तो मतलब you blame something or the other within your mind, कि कुछ तो बोला नहीं कभी, इसी के लिए है, कुछ बोलते तो ये नहीं होता, ये सिखाते तो ये नहीं होता, जबकि आई एम प्राउड ऑफ हिम, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, like I'm blessed to have him. But the thing is, when people do something like this, then we tend to blame something, na? Something, then we come to our karma, when we come to, then eventually I came to the thought that, okay, God is showing me in this form. Then we make someone mind our process the whole thing and then think, okay, God is coming in this form. Then we pretend that I'm in acceptance. नहीं, पर वो उसमें उसके भी आगे भी कुछ चीज है जया लेकिन जी। आपने जो रेडिकल तो फॉरगिवनेस गॉड ने बोली, बोला, that is उसमें important, एक that और is must. यस, दैट्स बिकॉज दैट पर्सन, वो सब इससे भी कि आपको, हाँ, भगवान चाहता था, इट्स इन, नथिंग कैन हैपन विदाउट द गॉड के चाहने के बिना, बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनकी प्लानिंग के बिना, दैट इज ट्रू। बट देन अनदर थिंग दैट यू हैव टू सी, दैट व्हाट आर वन माय लेसन्स ओवर हियर। हम कई बार What? हमारी लर्निंग्स भूल जाते, लर्निंग्स नहीं ले पाते, तो फिर सिचुएशंस रिपीट होती हैं लाइफ में, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस, सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स, वही सफरिंग फिर से आती है दूसरे पर्सन के साथ में, अलग फॉर्म में आ सकती है, सेम या दूसरे पर्सन के साथ में, और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ने लगती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज माय लेसन हियर, मुझे क्या छोड़ना है, एंड मोस्टली लेसन्स आर, अब कुछ छोड़ना रहता है, तो क्या छोड़ना है, वो देख पाना, कौन सा नेगेटिव बिलीफ है जो मैंने पकड़ रखा है जिसको छोड़ना है, और उससे हम वो देख पाते हैं जब हम रेडिकल फॉरगिवनेस की वर्कशीट करते हैं।
Okay. Thank you. Yeah. Okay. So thank you everyone for joining in. I know it was a beautiful call because of your questions, your sharings. Otherwise, it would have been a very boring call with me only talking. So thank you everyone for participating. Thank you very, very much for joining in. And we'll meet again in a week or two. I'll share the replay of the earlier call on radical forgiveness and this as well on the group. So thank you. Have a wonderful week ahead. Thank you. थैंक यू Thank Good you. बिल्कुल night. बोरिंग नहीं Thank you. था, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, मुझे बहुत मजा आया। हाँ, वो मुझे वही बोला ना कि इंटरेस्टिंग आप लोगों के सवालों की वजह से बना। आप लोगों ने जो शेयर किया आपकी वजह से बना, वो नहीं तो बोरिंग हो जाता। So थैंक thank Thank you you. so much. Bye. यू मैम, बाय बाय। Thank you. Bye.